students, how are you all? Welcome to today's class. Today's topic is moving ahead in Adobe Photoshop CS6. In the previous chapter, we have learned about the basic concept and tools of Adobe Photoshop. Photoshop provides you with a vast range of tools and their features. In this chapter, you will learn about some more tools used to edit image which are extremely useful for working in the Photoshop. तो previous chapter में हमने Adobe Photoshop CS6 के बारे में जाना था, उसके basic features के बारे में जाना था. इस chapter में हम इसके advanced features के बारे में जानने वाले हैं. Now painting tools. Photoshop provides several tools for painting and editing image color. Following are the painting tools. Brush tool. The brush tool is used to draw freehand drawings. It works like a brush to create a smooth stroke of color. Right click at the bottom right arrow of the brush tool to view the list containing tools as shown in figure. Follow the given steps to use brush tool. Step 1. Open the image and click on the brush tool. Step 2. Select the desired properties like the brush color, stroke style and size etc. from the option bar. The brush preset picker is used to select from various brush style and size of brush strokes. Tap the shortcut key to use the brush tool is B. Step 3. To set color of the brush stroke, click on set foreground color in the tools panel. Step 4. Choose desired color from the color picker palette and click OK. Step 5. Click and drag the mouse pointer to draw brush strokes of selected style, size and color. तो पहले पेंटिंग टूल में हम जान लेते हैं ब्रश टूल के बारे में. ठीक है, फोटोशॉप जो है ये आपको सेवरल पेंटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी इमेज में पेंटिंग वगैरह कर सको, अपनी इमेज को आप एडिट भी कर सको. इसमें ब्रश टूल पहले आता है. ब्रश टूल आपका यूज़ किया जाता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए. ये एक ब्रश की तरह ही काम करता है. ठीक है, और ये आपको स्मूथ स्ट्रोक देता है कलर के. राइट क्लिक करेंगे आप बॉटम राइट एरो ऑफ द ब्रश टूल ताकि आपको जो लिस्ट है टूल्स की वो आपको दिख जाए. अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं कि कैसे आप ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले आप इमेज को ओपन कर लेंगे, देन आप ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर प्रॉपर्टी को. इसमें से आप ब्रश कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके स्ट्रोक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ अगर आपको छोटा बड़ा चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन बार में से. जो ब्रश प्रीसेट पिकर है वो यूज़ किया जाता है टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस ब्रश स्टाइल एंड साइज ऑफ ब्रश स्ट्रोक. अब इसके लिए आपको शॉर्टकट की भी दी गई है. आप बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपका ब्रश टूल जो है वो ओपन हो जाएगा. आगे देख लेते हैं. अगर आपको ब्रश स्ट्रोक को जो कलर है उसको सेट करना है तो आपको सेट फोरग्राउंड कलर पे जाना होगा. इन द टूल्स पैनल आपको यहाँ पे डिजायर्ड कलर को चूज करना होगा फ्रॉम द कलर पिकर पैलेट. देन आप ओके करेंगे. फिर आप क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे अपना माउस पॉइंटर को ताकि आप अपने जो ड्राइंग एरिया है, वर्क एरिया है, वहाँ पे आप कलर कर सके या कुछ भी ड्रॉ कर सके. Pencil tool. The pencil tools help you to draw or write like you do with a pencil. You can click on pencil preset picker to change the size and hardness of the pencil. पेंसिल टूल आपको हेल्प करता है पेंसिल की ही तरह. आप जैसे काम करते हो अपने कॉपी में तो पेंसिल से आप ड्राइंग भी करते हो, आप कुछ टेक्स्ट भी लिखते हो, तो इसी तरीके से पेंसिल टूल से भी आप अपनी ड्राइंग पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. कलर रिप्लेसमेंट टूल. This tool replaces the color of an image with the foreground color. When we select this tool, the pointer changes to plus sign. Follow the given steps to use the color replacement tool. Step 1. Open the file containing the image for color replacement. Step 2. Select the brush tool, color replacement tool. Step 3 is click set foreground color option from the tools panel. The color picker palette appears. Step 4. Choose an appropriate color from the color picker palette and click OK. Step 5. Click and drag on the part of the image where you want to change the color. Tap the shortcut key to use the color replacement tool is B. तो यहाँ पे आप कलर रिप्लेसमेंट टूल को अप्लाई करके यूज़ करके आप कोई भी कलर जो है अपनी इमेज से वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं विद द फोरग्राउंड कलर.
जब आप अपने कलर को, इस टूल को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पॉइंटर है वो आपके प्लस साइन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप फाइल को ओपन करेंगे जहाँ पे आपकी इमेज होगी कलर रिप्लेसमेंट के लिए। देन आप ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल में से। इसके बाद आप फॉरग्राउंड कलर को सेट करेंगे। ठीक है, कैसे, सेट फॉरग्राउंड कलर को आप चूज करेंगे, क्लिक करेंगे फ्रॉम द टूल्स पैनल, तो कलर पिकर पैलेट जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट कलर को चूज करना है इसी पैलेट में से। देन आप ओके पे क्लिक करेंगे। देन आप उस इमेज पे क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आएंगे जहाँ का आप कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं, जो कि है बी। इरेजर टूल, the eraser tool is used to erase the whole or part of an image. Right click on this tool to get a submenu with the option to choose whatever is desired. Eraser tool, to use this tool, press left mouse button and move the pointer on the area you want to delete. Foreground eraser tool is to use to erase the background of the image. Magic eraser tool, this tool can be used to delete a part of the image in one go. Follow the given steps to use eraser tool. Step 1, open the image that you want to delete. Step 2, click the eraser tool. Step 3, click and drag the mouse over the part of the image to be erased. इरेजर टूल भी आपका जो इरेजर होता है आपके पेंट टूल में या आपका पेंट प्रोग्राम में, वहाँ पे जैसे आप इरेजर यूज़ करते हैं वैसे भी इरेजर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है इरेजर टूल का काम होता है कोई भी आपकी इमेज के पार्ट को जो आपको अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए, उसको आप इरेज कर सकते हैं। कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो वहाँ पर भी आप इरेजर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेजर टूल जो होता है, यहाँ पे आप लेफ्ट माउस बटन पे जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जब आप उसको ड्रैग करके लेके जाते हैं उस एरिया पे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो ईजिली उस एरिया को डिलीट करता है। फोरग्राउंड इरेजर टूल जो होता है ये आपके इमेज के बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैजिक इरेजर टूल जो होता है ये आपके इमेज के पार्ट को इरेज करता है इन वन गो। अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज को ओपन करेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, जिसका पार्ट आप इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे एंड आप क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आएंगे अपने माउस को ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज जिसे आप इरेज करना चाहते हैं। नाउ ग्रेडियंट टूल। A gradient tool is a mixture of two or more colors blended together in a definite pattern. The gradient tool allows you to fill an area with a range of colors in a specific pattern. Follow the given steps to use gradient tool. Step 1, open an image and click on gradient tool. Step 2, in the option bar, select the desired gradient type: linear, radial, angular, reflected or diamond gradient 1. Step 3, click gradient sample in the option bar. A gradient editor dialog box will appear. Step 4, choose any of the gradient from the preset box. Step 5, click and drag in the area to apply the gradient. ग्रेडियंट टूल के बारे में जान लेते हैं। ग्रेडियंट टूल जो होता है ये आपका मिक्सचर ऑफ टू कलर्स होता है, एक इसमें लाइट होता है, एक इसमें डार्क होता है। तो इसको जब आप मिक्स कर लेते हैं, इसका ब्लेंड कर लेते हैं तो वो आपका ग्रेडियंट कहलाता है, ग्रेडियंट व्यू आपका कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम स्टेप्स यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज जो है वो ओपन कर लेनी है, देन आपको ग्रेडियंट टूल पे जाना है, फिर आपको ऑप्शन बार में सेलेक्ट करना है डिजायर्ड ग्रेडियंट टाइप को। लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, एंगुलर चाहिए, रिफ्लेक्टेड चाहिए, जो भी चाहिए आपको इनमें से आपको एक पार्ट को, एक टूल को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप ग्रेडियंट सैंपल पे क्लिक करेंगे इन द ऑप्शन बार। ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन आपको एनी ऑफ द ग्रेडियंट को चूज करना है फ्रॉम द प्रीसेट बॉक्स। इसके बाद आपको क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आना है अपने एरिया पे जहाँ पे आप ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं। Retouching tools. The retouching tools are used to remove the flaws and imperfection in an image. Some of the retouching tools are spot healing brush tool. This tool is used to remove blemishes, scars, unwanted marks and other imperfection in photographs. Follow the given steps to use this tool. Step 1, open the image that you want to retouch. Step 2, select the spot healing brush tool. Step 3, from the option bar, specify the properties such as brush size, blending mode, etc. Step 4, click and drag over the spot to get it repaired. Note, healing brush tool also works in a similar manner. In healing brush tool, you have to define a source point.
Press Alt key and click on the image to define a source point. रीटचिंग टूल जो होता है ये आपके जितने भी आपके फ्लॉज होते हैं, इम्परफेक्शन होते हैं इमेज में, इसको आपको रिमूव करने के लिए यूज़ करना पड़ता है रीटचिंग टूल को। इसमें सबसे पहला आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये टूल जो होता है ये आपके ब्लेमिशेस को, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारी फेस पे कुछ ऐसे स्कार्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, चोट के निशान होते हैं, या कुछ भी आपके एक्ने मार्क्स होते हैं, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो स्मूथ दिखे, तो आप यहाँ पे हीलिंग ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमेज को ओपन करना है जिसे आप रीटच करना चाहते हैं, देन आप सेलेक्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। इसके बाद आप ऑप्शन बार में से स्पेसिफाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे उसका ब्रश का साइज़, ब्लेंडिंग मोड एक्सेट्रा। देन आप क्लिक एंड ड्रैग करके आएंगे उस स्पॉट पे जिसे आप रिपेयर करना चाहते हैं। हीलिंग ब्रश टूल भी जो होता है ये सिमिलर मैनर में ही काम करता है। ये भी आपके जितने भी आपके स्कार्स हो गए या कुछ भी मार्क हो गया, कुछ भी अनवांटेड आपकी कोई भी चीज़ है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल। Clone stamp tool allows you to paint with a sample of an image. It takes the pixel from a selected area and clone or duplicate them into another area. To select the clone stamp tool, follow the given steps. Step 1. Open the image and click the clone stamp tool on the tools panel. Step 2. In the option bar, click on brush preset picker to set the brush size, style and hardness of the tool. You can use any brush tip with the clone stamp tool, which gives you precise control over the size of the clone area. Step 3. Hold down the Alt key. The cursor shape changes to a target symbol. Click on the image to define a source point. Step 4. Click and drag the mouse to that place where the clone is to be created. क्लोनिंग स्टैम्प टूल, जो क्लोन स्टैम्प टूल होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो इमेज है उसकी आप क्या करना चाहते हैं, क्लोनिंग करना चाहते हैं, उसका एक और आप इमेज उसकी कॉपी आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को ओपन करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को ऑन द टूल्स पैनल। देन आप ऑप्शन बार पे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे ऑन ब्रश प्रीसेट पिकर, ताकि आप अपने ब्रश के साइज़ को, उसके स्टाइल को, उसकी हार्डनेस को आप क्या कर सकें, वहाँ से सेलेक्ट कर सकें। यहाँ पे आप किसी भी ब्रश को, उसकी टिप को आप यूज़ कर सकते हैं विद द क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, जो कि आपको प्रिसाइज कंट्रोल देगा ताकि जो आपका क्लोन एरिया है उसके साइज़ जो है वो आप अच्छे से कवर कर सको। देन आपको ऑल्ट की को होल्ड डाउन करना है। इसके बाद आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, आपके इस तरीके जो प्लस है उसके चारों तरफ जो एरो जो सर्कल बना हुआ है इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है उस इमेज पे जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं सोर्स पॉइंट तक। देन आपको क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आना है अपने माउस को जहाँ पे आप अपने क्लोन को क्रिएट करना चाहते हैं। रिमेंबर, व्हेन यू ड्रॉ अ प्लस साइन appears on the original image while a corresponding circle appears on the cloned image. जब आपका प्लस साइन जो है वो आपके क्लोन्ड इमेज में जा रहा होता है, जो आपके ओरिजिनल इमेज पे जा रहा होता है, तो वही सेम प्लस साइन जो होता है आपके क्लोन्ड एरिया में भी आपको विजिबल होता है। तो जैसे जैसे आप अपना जो ओरिजिनल शेप पे आप अपना जो प्लस साइन है उसको यूज़ करते हो, उसको हिलाते हो, तो सेम चीज़ आपके क्लोन्ड एरिया में भी क्या हो रही होती है, मूव हो रही होती है। नाउ ब्लर टूल। The blur tool is used to create effects in a photograph. This tool contains 3 options. Blur tool. This tool can be used to blur out a background or create a soft tone in the selected area of a photograph or image. Sharpen tool. This tool is the contrast of blur tool. This tool lets you improve the clarity of our image by sharpening the outline of an image more prominently. Smudge tool. It helps to spread colors across the image like a smudge effect. Follow the given step to use blur tool. Step 1. Open the image and click on the blur tool. Step 2. Set the property of the selected tool from the option bar. Step 3. Click and drag on the image to see the effect of the selected tool. ब्लर टूल जो होता है ये आपके फोटोग्राफ में ब्लर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी फ़ोटो के पीछे कुछ ऐसा बैकग्राउंड होता है जो कि अच्छा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं। ब्लर टूल जो होता है ये आपके बैकग्राउंड को
ब्लर कर देता है और आपको एक सॉफ्ट टोन जो है क्रिएट करके देता है। नेक्स्ट आता है आपका शार्पन टूल। ये आपकी इमेज के जो उसकी बॉर्डर होती है उसको क्या करता है, शार्पन करता है, ताकि जो आपकी फोरग्राउंड आपकी जो इमेज है वो और अच्छे से उभर के आए। स्मर्ज टूल जो होता है ये आप स्मर्ज करने के लिए, कोई चीज़ जो आप स्मर्ज करना चाहते हैं वो आप स्मर्ज टूल के थ्रू, स्मर्ज इफेक्ट के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप इमेज को ओपन कर लेंगे, देन आप ब्लर टूल पे क्लिक करेंगे, फिर आप प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करेंगे ऑफ द सेलेक्टेड टूल फ्रॉम द ऑप्शन बार। फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करके लेके आएंगे उस इमेज पे जहाँ पे आप इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। Dodge tool. The dodge tool is again used to give effect on an image. There are 3 options in the submenu of you. If you right click on the dodge tool. Dodge tool. It is used to make the darker portion of the image lighter. Burn tool. It is used to give a burning effect, that is to darken the pixel of the image or a selected portion of the image. Sponge tool. It is used to give a spongy effect on the image. Follow the given steps to use the dodge tool. Step 1. Open the image and click on the dodge tool. Step 2. Set the brush size and other properties of the dodge tool from the option bar. Step 3. Click and drag the mouse on the image to apply the effect of the selected tool. Tip: the shortcut key to use dodge tool is O. डॉज टूल जो होता है ये आपका इमेज में इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी आपके 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है आपका डॉज टूल, ये आपके इमेज में जो आपकी लाइटर इमेज है उसको डार्कर ये आपको क्या देता है, एक इफेक्ट देता है। बर्न टूल जो होते हैं ये आपके जितने भी आपके बर्निंग इफेक्ट होते हैं उसको देने के लिए अप्लाई किया जाता है और ये आपके पिक्सल ऑफ द इमेज को क्या करता है, डार्कर करता है। स्पॉन्ज टूल जो होता है ये आपकी इमेज को स्पॉन्जी इफेक्ट देता है। तो हम जान लेते हैं कैसे हम डॉज टूल को यूज़ करते हैं अपनी इमेज में। आपको इमेज ओपन कर लेनी है, देन आपको डॉज टूल पे क्लिक कर लेना है, देन आपको ब्रश का साइज़ जो है वो सेट कर लेना है एंड आपकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी आप जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके वैल्यू को, उसके पिक्सल को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अपने माउस को अपनी इमेज पे, ताकि आप जो सेलेक्टेड टूल, जो भी आपने टूल यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसके इफेक्ट को आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकें। डॉज टूल को आप शॉर्टकट कीज के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ओ को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। एडिंग टेक्स्ट टू एन इमेज, वी कैन ऐड टेक्स्ट इन एन इमेज। The type tool is used to insert text in the image. Follow the given steps to use a type tool. Step 1. Select the type tool from the tools panel. Step 2. In the option bar, enter the following as needed. Step 3. Drag the mouse on the image. A rectangular box will appear. Step 4. Type the text. The text will appear in an image. By default, the horizontal type tool is active. The vertical type tool in the flyout menu is used to write vertical text. To edit an existing block of text, select the type tool and position the cursor on the text. It will identify the text and let you edit. तो अब आप अपनी इमेज में टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहें, सपोज आपको हेडिंग देनी है, कुछ भी आपको लिखना है वहाँ पे, तो आप इजीली आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप टूल जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज में कोई भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है टाइप टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल, देन आप ऑप्शन बार पे जाएंगे और आप फॉलोइंग जो है उसको एंटर करेंगे वहाँ पे जो भी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सपोज आपको बोल्ड चाहिए आपका टेक्स्ट या आपको उसका पीपीटी कितना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप जो है पहले से ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जो माउस है वो ड्रैग करके लेके आएंगे इमेज पे, तो आपके सामने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही आपको अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्टिकली क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली आप दोनों तरीके से यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट है उसे आप टाइप कर सकते हैं, उसे आप अपीयर कर सकते हैं। Wrapping text. Wrapping is used to give various twists to text. For example, arc or wave. To use the wrap option, follow the given steps. Step 1 is select the type tool from the tools palette and enter the text.
Step 2, click on the create wrapped text option from the option bar. Step 3, the wrap text dialog box will appear as shown below. Step 4, click on the drop down arrow of the style and select a desired style. Step 5, click on the OK button. With the help of move tool, place the text where you wish. अब आप अपने टेक्स्ट को रैप भी कर सकते हैं. रैपिंग जो होती है वो यूज़ किए जाते हैं आपके टेक्स्ट में वेरियस ट्विस्ट लाने के लिए, जैसे कि आप आर्क दे सकते हैं या आप वेवी उसको लुक भी दे सकते हैं. इसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे टाइप टूल को फ्रॉम द टूल्स पैलेट एंड आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है एंटर करेंगे. देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि आपको ऑप्शन बार पे नज़र आ जाएगा. यहाँ पे आपके सामने रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ से आपको अपने स्टाइल को चूज़ करना है. कोई भी डिज़ायर्ड आप स्टाइल जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. फिर आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो उसी स्टाइल में, उसी फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा. Viewing tools. There are two types of viewing tools in Photoshop, zoom and hand tool. Zoom tool. The zoom tool lets you magnify area of an image when you are performing close detailed work. Clicking the tool on the image lets you see a magnified view of your image. Zoom out by pressing the Alt key while clicking the image. Tap the shortcut for the zoom tool is Z. Hand tool. When you are zoomed on an image, you can move the image within the window using the hand tool. This lets you see other areas of the image. Tip: use Ctrl++ to zoom in and Ctrl+- to zoom out. अब आप अपनी इमेज को जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं. मतलब आप अगर उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं. जूम टूल जो होता है ये आपकी इमेज को मैग्नीफाई करता है. जैसे मैग्नीफाई टूल होता है, मैग्नीफाई आपका ग्लास होता है, वो आपको क्या करता है और डिटेल में कोई चीज़ के बारे में बताता है. सिमिलरली आपका जूम टूल भी जो होता है ये भी आपकी जो इमेज है उसको और ज़्यादा जूम करके ये आपको उसको क्लियर दिखाता है. तो यहाँ पे आप जूम टूल को शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं, Z की को प्रेस करके. हैंड टूल जो होता है जहाँ पे आप जूम्ड करते हैं किसी भी इमेज में, तो आप देखते हैं आपका जो कर्सर होता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक हैंड टूल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, विद इन द विंडो यूजिंग हैंड टूल. यहाँ पे आप इमेज को क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं, उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप ईजिली वहाँ पे कर सकते हैं. लेयर्स इन फोटोशॉप. Layers in Photoshop are just like transparent sheets stacked one over the other. Using layers, you can work with one element of an image without disturbing other elements. You can add multiple layers to your layers panel. A new image in Photoshop has a single layer. To open layer panel, select Window, Layers or press F7 key. Adding a new layer. A new layer is always created above the selected layer. Follow the given steps to create a new layer. Step 1, click on the layer menu. Step 2, select a new layer option from the sub menu. The new layer dialog box appears. Step 3, define name in the name text box and click OK. Tap the shortcut key to create a new layer is Ctrl+Shift+N. अब आप यहाँ पे अपनी फोटोशॉप में आप क्या कर सकते हैं, लेयर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. लेयर्स जो होती हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट शीट की तरह ही वर्क करती हैं, और ये लेयर के ऊपर लेयर, मतलब आपकी जो इमेज होती है उनके ऊपर ये एक के ऊपर क्या करती हैं, काम करती हैं. लेयर्स को यूज़ करके आप किसी भी इमेज के एक एलिमेंट में वर्क कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपकी जो दूसरी एलिमेंट है, दूसरी इमेज है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी. अब यहाँ पे आप लेयर पैनल के थ्रू मल्टीपल लेयर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेज में. एक न्यू इमेज जो होती है फोटोशॉप में वो एक सिंगल लेयर के साथ ही ओपन होती है, या यूँ कह लो कि उसकी एक सिंगल लेयर होती है. टू ओपन लेयर पैनल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विंडोज़ पे जाएंगे, देन आप लेयर्स पे जाएंगे, या फिर आप F7 की जो आपकी फंक्शनल की होती है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे आप न्यू लेयर्स को ऐड करते हैं. इसके लिए सबसे पहले आप लेयर मेन्यू पे जाएंगे, देन आप न्यू को सेलेक्ट करेंगे, उससे आप लेयर ऑप्शन पे जाएंगे फ्रॉम द सब मेन्यू, तो न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा. आपको डिफाइन करना है नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक करना है ओके. इसके लिए आपको शॉर्टकट की भी दी गई है ताकि आप न्यू लेयर को क्रिएट कर सको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. आपको Ctrl+ करना है, फिर Shift+ करना है, फिर N+ करना है.
Now selecting layers. To select a layer to work upon, click that particular layer in the layers panel. The selected layer is called the active layer. To select multiple adjacent layers, press the shift key while you click on them. To select all the layers in the layers panel, choose all layers option from the select menu. अब आप इन लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस भी लेयर पे आपको काम करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप पर्टिकुलर लेयर पे सेलेक्ट करेंगे इन द लेयर्स पैनल। फिर आप सेलेक्टेड जो आपकी लेयर है वो आपकी एक्टिव लेयर कहलाएगी। फिर आपको अगर मल्टीपल एडजेसेंट लेयर्स को सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट की को प्रेस करना होगा जब आप उन पर क्लिक कर रहे होंगे। अगर आपको ऑल लेयर्स को सेलेक्ट करना है इन द लेयर्स पैनल तो आपको ऑल लेयर्स को चूज करना पड़ेगा जो आपके सेलेक्ट मेन्यू में आपको दिखाई देगा। Renaming a layer. To rename a layer, double click on the layer name in the layers panel and type a new name when the cursor appears. Rename, अगर आप किसी लेयर को करना चाहते हैं तो आप उसके लेयर नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इजीली वहाँ पे आपको जो कर्सर नजर आएगा वहाँ से आप अपने नेम को, पुराने नेम को हटाकर नया नेम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। Deleting a layer. Select one or more layer to be deleted in the layers panel and press the delete key, or select the layer you want to delete and right click on it and select the delete layer option from the shortcut menu. किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए आप एक या एक से ज़्यादा लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिलीट की को प्रेस करेंगे या फिर आप लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। देन आप राइट क्लिक करेंगे उसी पे ही तो आपको डिलीट लेयर ऑप्शन नजर आएगा उसी सब मेन्यू में से। लेयर इफेक्ट्स. Photoshop provides you various effects using which you can change the appearance of layers content. You can put effects like shadows, strokes, glows, emboss, etc. to the images. Follow the given steps to apply layer effects. Step 1. Select a layer in the layers panel. Step 2. From the layer menu, select a layer style option and choose the desired effect from the sub menu, or click on the layer styles button at the bottom of the layers panel and click on the desired style. Step 3. The layer style dialog box appear as shown below. Select the desired effect by clicking the corresponding check boxes on the left side of the dialog box. Step 4. Likewise, select the appropriate option for the selected effect on the right side of the dialog box. Step 5. Click OK to apply the effect. अब आप अपने लेयर इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। फोटोशॉप आपको वेरियस इफेक्ट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपकी जो लेयर कंटेंट की जो अपीयरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कई तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे कि शेडो है, स्ट्रोक है, ग्लो है, एम्बॉस है, एक्सेट्रा। अब आप ये कैसे कर सकते हैं ये आप स्टेप के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको उस लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको उस लेयर को फ्रॉम द लेयर मेन्यू आपको लेयर स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप चूज करेंगे डिजायर्ड इफेक्ट को फ्रॉम द सब मेन्यू या फिर आप क्लिक करेंगे लेयर स्टाइल बटन पे एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल, उसमें भी आप डिजायर्ड स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड इफेक्ट को बाय क्लिकिंग द कॉरस्पॉन्डिंग चेक बॉक्सेस, ठीक है। इसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फॉर द सेलेक्टेड इफेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स। इसके बाद आप ओके करेंगे ताकि जो आपका इफेक्ट है वो आपकी स्क्रीन पे, आपके इफेक्ट पे, आपके जो आपकी फोटो है वहाँ पे अप्लाई हो सके। Let us rewind. Adobe Photoshop provides a different painting tools such as brush tool, pencil tool, gradient tool, color replacement tool, eraser tool, etc. Retouching tools such as clone stamp tool, spot healing tool, etc. are used to remove flaws and imperfection from an image and give it an enhanced effect. You can also insert text in an image using type tool. Layers are the transparent sheets that can hold objects and are stacked on top of each other. Using layers, you can work with one element of an image without disturbing its other elements. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.